Here the first question is, if the length of the ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall, find the angle made by the ladder with the horizontal. Okay, so first हम diagram draw करते हैं. Suppose this is the given wall and this is the ladder that is placed against the wall, and this will represent the distance between the foot of the wall and the ladder. Okay, so now यहाँ पर हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी. So this angle will be 90 degree, and so AB represents the length of the ladder, AC represents the height of the wall, and BC represents the distance between the foot of the ladder and the wall. Okay, so जैसे कि यहाँ पर हमें relation दिया है, the length of the ladder is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. So foot of the ladder and the wall के बीच में जो distance है, that is BC. अब मैं इसको suppose consider करता हूँ, let it be x. So if it is x, so what will be the length of the ladder? It will be 2x, because it is given it is twice the distance between the foot of the ladder and the wall. So उसे हमने x consider कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा 2x. Okay, so हमें find out करना है the angle made by the ladder with the horizontal. So AB is the ladder, so it makes an angle, this angle B with the horizontal, that is BC. Okay, so ये angle को हम ले लेते हैं, let it be theta. Okay, so now अब ये angle जो theta है, इसका मुझे adjacent side पता है और we know the hypotenuse of this triangle. So कौन सा trigonometric function है जो हमें adjacent side और hypotenuse का relation देता है, and that is nothing but a cos function. Yes, so if we take cos theta in this triangle, so cos theta is what? Adjacent side, that is यहाँ पर BC है, that is x, upon hypotenuse, that is AB, and that is nothing but 2x. So x will get cancel out, so यहाँ पर आ जाएगा cos theta is equals to 1 by 2. Okay, so cos theta is 1 by 2. So can I write in the place of 1 by 2, can I write cos 60 degree, because cos 60 is 1 by 2. So now we are getting that cos theta is equals to cos 60. तो दोनों साइड फंक्शन सेम ही है, दोनों साइड cos फंक्शन है. So थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? That will be nothing but equals to 60 degree only. Yes. So here we are getting theta equals to 60 degree. So therefore the angle made by the ladder with the horizontal is 60 degree. Yes or no? So यहाँ पर मुझे adjacent और hypotenuse पता था, so we have taken cos function, या आप sec function भी ले सकते, तो वहाँ पर hypotenuse अपॉन adjacent आ जाता. Again theta will be 60 degree only. Okay, so ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सा इन्फॉर्मेशन है, एंड वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको वो रिलेशन देता है, तो उसे आप वो पर्टिकुलर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. So hope you have understood. Now we'll move on to the next question. Okay, so the next question here is area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is. Okay, so अब पहले हम semicircle draw कर लेते हैं. Suppose this is a given semicircle. So this will be the diameter of the semicircle. अब देखो ये semicircle में बहुत सारे triangles form होंगे. So this will be one triangle that is inscribed in this semicircle. This is another triangle that is also inscribed in the semicircle. ये भी एक triangle है. ओके, सो अब देखो ये सारे ट्राइंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. यस और नो? बिकॉज अब जैसे ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल. या एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. यस, एंड यहाँ पर सपोज ये डी है तो ए डी सी विल बी 90 डिग्री. ये सपोज ई है तो ए ई सी विल बी 90 डिग्री. तो ये सारे ट्राइंगल जो है जो यहाँ पर इंस्क्राइब ट्राइंगल्स है, सो वो क्या है? दे आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. ओके, बट हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है? जो यहाँ पर लार्जेस्ट ट्राइंगल होगा. यस और नो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब ट्राइंगल में हम 3 बेस और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट्स हमें, मतलब देयर आर 3 बेस एंड 3 करस्पॉन्डिंग हाइट्स. तो अब जैसे कि यहाँ पर ए बी और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है, बिकॉज बी जो है 90 डिग्री है, वैसे डी यहाँ 90 डिग्री, तो दे आर परपेंडिकुलर. तो ए बी को एज अ बेस ले अगर मैं लेता हूँ तो बी सी क्या हो जाएगा? हाइट. या मैं बी सी एज अ बेस लेता हूँ तो ए बी एज अ हाइट हो जाएगा. तो मैं ए बी को एज अ बेस लूँ या बी सी को एज अ बेस लूँ, तो मैं करस्पॉन्डिंग जो हाइट है ए बी या बी सी जो भी है वो हाइट लेके मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ. या तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए सी को एज अ बेस ले सकता हूँ. यस और नो? एंड तो करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगा वो बी से बनेगा, बी से हाइट बनेगा. तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी बेस ले लो, उसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो लेके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कोई भी बेस और हाइट लेके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. एरिया विल रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस. यस, ओके. तो यहाँ पर देखो ए बी और बी सी को एज अ बेस और हाइट लेके
मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ए बी और बी सी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ए सी एज अ बेस मैं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ए सी जो है वो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का जो रेडियस है इट इज गिवन एज आर यूनिट्स, सो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट इज 2r। तो ए सी मुझे मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर। यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो ट्राइंगल्स है उनमें क्या करूंगा, मैं ए सी एज अ बेस कंसीडर करूंगा। यस, अब मुझे कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो लार्जेस्ट ट्राइंगल। तो ए सी एज अ बेस अगर मैं लेता हूँ, तो ए सी का जो करस्पॉन्डिंग जो हाइट बन रहा है, वो अगर लॉन्गेस्ट हाइट होगा, यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स है उसमें जो सबसे बड़ा हाइट होगा, जो लॉन्गेस्ट हाइट होगा, दैट विल बी नथिंग बट दी लार्जेस्ट ट्राइंगल यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये, तो सपोज ये बी एफ है। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ डी जी इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ए सी एज अ बेस, तो डी जी एज अ हाइट हो जाएगा। यस, अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ ई एच, यस, तो इसमें कौन सा हाइट सबसे लॉन्गेस्ट होगा, तो जरूरी नहीं कि तीनों में से, यहाँ पर कौन सा हाइट सबसे लॉन्गेस्ट होगा कौन से ट्राइंगल का, दैट विल बी नथिंग बट जो यहाँ पर रेडियस होगा, जो हाइट यहाँ पर रेडियस होगा। यस और नो? यस, जो हाइट यहाँ पर एज अ रेडियस फॉर्म होगा, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट हाइट। यस और नो? दैट विल बी लॉन्गेस्ट हाइट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम कौन सा बेस, तो ए सी ले रहे हैं, हाइट क्या होगा यहाँ पर, लॉन्गेस्ट हाइट होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पर सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी हाफ इनटू बेस, बेस क्या ले रहे हैं हम, ए सी, एंड हाइट जो होगा यहाँ पर, वो जो भी ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल सपोज ये ए पी सी ले रहा हूँ, तो ये हाइट हो गया पी क्यू, एंड ये पी क्यू जो है वो रेडियस के बराबर है, तो हाफ इनटू बेस, दैट इज ए सी क्या है, दैट इज डायमीटर एंड दैट इज 2r, और पी क्यू क्या है, रेडियस। अंडरस्टूड? तो 2 विल गेट कैंसिल आउट, तो r into r, that is r square. So area of the triangle is nothing but r square units, r square units. Understood? So what will be the area of the largest triangle here will be nothing but r square units. Understood? क्योंकि यहाँ पर जो longest height होगा, that will be nothing but the radius only. क्या होगा, radius होगा। Understood? Okay. So इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, इट्स जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन, बट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, और सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे, बट उसमें हमको बेस ए सी लेना है, और हाइट कौन सा लेना है, जो हाइट एज अ रेडियस फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स होंगे, बट जिसमें रेडियस एज अ हाइट होगा, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट हाइट इन दिस given triangles. Yes? Okay. Hope you have understood. Now we'll move on to the next question. Okay, so next question here is, if the perimeter of a circle is equal to that of a square, then the ratio of the areas is, okay, so perimeter of a circle is nothing but 2 pi r, yes, and perimeter of square क्या होता है, that is 4 into side, so 4 into side को हम as a consider करते हैं, so 4 है। so जैसे कि यहाँ पर condition दिया है that PC is equals to ES, perimeter of circle equals to perimeter of square, so what is perimeter of circle, it is 2 pi r and perimeter of square is 4a। ओके, अब हमें एरिया का रेशियो लेना है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर। सो साइड यहाँ हम क्या ले रहे हैं, ए, सो इट विल बी ए स्क्वायर। बट व्हाट इज ए हियर, तो ए का रिलेशन जो है, मतलब ए इज इक्वल्स टू व्हाट, तो वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। यस yes? तो ए को हम एज ए सब्जेक्ट बनाते, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू ए। यस, सो 1 2, सो इट विल बी नथिंग बट पाई आर डिवाइड बाई 2, सो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वैल्यू क्या आया हमें, पाई आर डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। यस और नो? ओके, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो इट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4, सो आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, पाई और एक पाई यहाँ कैंसिल हुआ, सो वी आर गेटिंग दैट 1 डिवाइड बाई पाई बाई 4, एंड इसका रेसिप्रोकल होके 4 अपॉन पाई आ जाएगा। यस, बट यहाँ ऑप्शन में तो 4 बाई पाई है नहीं, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 लेके देखते हैं, सो 22/7, सो 22/7 का रेसिप्रोकल होके 7 ऊपर आ जाएगा, तो 4 into 7 दैट इज 28 डिवाइड बाई 22, सो दैट विल बी नथिंग बट 2 के टेबल में 2 into 14 2 into 11, सो 14:11। यस, 14:11, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? Okay, so यहाँ पर just perimeter को equate करना है, then from there we'll get the side of the square, that is A is equals to in terms of R, and then substitute the formula of area of जो square है। Okay, so now we'll move on to the next question.
So next question here is, okay, so the next question is, what is the perimeter of a sector of a circle whose central angle is 90 degree and radius is 7 centimeter? Okay, so now suppose this is a given circle. So central angle जो है is nothing but equals to 90 degree. So let it be A, B, C. So O dash A, B, C. So this is the sector and this angle is nothing but 90 degree and radius of the circle is 7 centimeter. Okay, so अभी हमें इसका perimeter find out करना है of the sector. So perimeter of the sector O dash A, B, C. So perimeter means boundary. So boundary यहाँ पर क्या देखो OA plus OC plus ABC, ये arc जो है ABC इसका length. Yes, तो यहाँ पर इसका perimeter क्या आएगा? Perimeter of this sector will be nothing but OA, that is R, plus OC, that is also R, plus length of an arc ABC, length of an arc ABC. So R plus R, that is 2R, plus length of an arc का formula क्या होता है? It is theta by 360 into 2 pi R. Yes, okay. So now 2 into R का value है 7 plus theta is 90 divided by 360 into 2 pi is 22 by 7 into R is 7. 7 will get cancelled. 1 4. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 into 7, that is 14. And अब यहाँ पर क्या बचा? 2 into 1, 2 into 2, and ये 2 into 11. So plus 11. So nothing but 14 plus 11, that is 25 centimeter. So the perimeter will be nothing but 25 centimeter. So perimeter मतलब क्या हुआ यहाँ पर? Boundary. So that is OA plus OC plus length of an arc ABC. So length of an arc का formula होता है theta by 360 into 2 pi r. So here the perimeter will be 25 centimeter. Okay. So hope you have understood. If still you have any doubt in any of the questions जो अभी तक हमने किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो मैं वो और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. Yes. Okay. Now we'll move on to the next question. Okay, so the next question is, what is the area of the largest square that can be inscribed in a circle of radius 12 centimeter? So, sorry. Suppose this is a given circle and this is the required square. यहाँ पर proper square नहीं दिख रहा, but suppose this is square A, B, C, D. That is the largest square that can be inscribed in this circle. Okay, so अब area of square is what? Side square. So we have to find out the side of this square. अब हमें पता है radius of the circle is 12 centimeter. Okay, अब ये जो square है, इसका जो diagonal AC जो है, diagonal AC will be nothing but equal to diameter of the circle. अब ये diameter क्यों होगा? Because अगर मैं AC draw करता हूँ, so this is nothing but a chord of the circle. अब ये chord AC जो है, वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बना रहा है, बिकॉज ये एंगल भी जो है वो 90 डिग्री है. क्यों? दैट इज द एंगल ऑफ अ स्क्वायर. सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं. तो एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री है. सो दैट इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एसी ऑन द सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री. का मतलब ये हुआ. तो हमें पता है कि कौन सा कॉर्ड सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री बनाता है. दैट इज नथिंग बट द डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. यस, सो इसका मतलब एसी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल. यस और नो? एंड एसी इज आल्सो द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर. ओके, सो AC कितना हो जाएगा? सर्कल का रेडियस कितना है? 12. तो AC कितना हो जाएगा? 24. दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. यस, ओके. सो अब हमें इसका साइड फाइंड आउट करना है. तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, सो सपोज इसके जो साइड्स है वो नथिंग बट x. सो सारे साइड्स इक्वल, सो लेट इट बी x. सो x और ये x आ गया. तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दैट इज 24 स्क्वायर. सो दैट विल बी नथिंग बट 2x स्क्वायर विल बी नथिंग बट 24 square, that is 576. Yes, so x square will be nothing but 576 divided by 2, that is nothing but 288, that is 288. So x square we are getting is 288. Yes, so अब देखो x जो है that is the side of this square. तो area क्या होगा? area of square क्या होगा? area of this square will be nothing but x square, and x square already आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर रूट करके मत निकालो. x square आया उसको एज इट इज रखो. देन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड हमने x कंसीडर किया तो इट विल बी x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का वैल्यू हमें आ रहा है 288. सो इट विल बी 288 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दैट विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो ऐसे केस में जब भी इंस्क्राइब स्क्वायर आता है, सो आपको क्या करना है?
जो भी डायमीटर होगा दैट विल बी नथिंग बट द डायगोनल ऑफ द गिवन स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the surface area of two spheres are in the ratio of 16:9. The ratio of their volumes is okay. So surface area of spheres क्या होता है 4 pi r square. So 4 pi r1 square that is first sphere का surface area divided by 4 pi r2 square. इसका रेशियो हमें दिया है 16/9. So 4 pi will get cancel out. So r1 square by r2 square will be nothing but 16/9. So taking square root on both the sides, तो r1 by r2 जो हमें मिलेगा that will be nothing but 4/3. yes or no? क्या जाएगा हमें 4/3. ओके, अब हमें वॉल्यूम का रेशियो लेना है. तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 r2 क्यूब. यस, ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो r1 क्यूब डिवाइड बाय r2 क्यूब. So that can be written as r1 upon r2 the whole cube, and that is nothing but r1 by r2 का रेशियो हमें मिला है 4/3. So just substitute as 4/3 the whole cube. So 4 cube is 64/27. So 64/27. Yes. So hope you have understood. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो जब भी ऐसा कुछ आता है तो आपको कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन करने ही आ जाना चाहिए इसका आंसर. अब देखो ये क्या आ रहा है 16:9. तो आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर है. तो 4 और 3 के स्क्वायर है, तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा 4:3. यस, जब सरफेस एरिया ले रहे हो तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर होगा. तो इसका मतलब हमें ये किसका स्क्वायर है दैट इज 4 and 3 का. तो 4/3 का रेशियो आएगा. अब उसका क्यूब कर दो, उसका ही 4/3 का क्यूब कर दो, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा आपको, वॉल्यूम का रेशियो. क्योंकि 4/3 पाई ये जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है. इवन सरफेस एरिया में 4 पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है. तो रेशियो तो किसका आ रहा है r1 and r2 का ही आ रहा है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लो. फिर जो भी स्क्वायर रूट वैल्यू आया, जैसे यहाँ 4:3 आया, फिर उसका क्यूब ले लो. अगर वॉल्यूम का रेशियो क्यूब लोगे तो आपको आ जाएगा 64:27. अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन विदाउट कैलकुलेटिंग द दिस वैल्यूज आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. सो ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज if the areas of three adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively, then find the volume of cuboid. Okay, so first हम cuboid draw कर लेते हैं. ओके, सो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब ये जो है सपोज ये जो है वो फ्रंट फेस है, ये फ्रंट, ये साइड आ गया और ये टॉप फेस है. यस, तो अब ये फ्रंट वाला जो है इसका जो एरिया है फ्रंट में, हाँ, तो फ्रंट का जो एरिया होगा दैट विल बी लेंथ. देखो लेंथ इनटू हाइट. यस, सो दैट इज नथिंग बट लेंथ इनटू हाइट. यस, और ये जो साइड फेस है, अब इसका क्या होगा, ये ब्रेथ और ये हाइट. तो ब्रेथ इनटू हाइट, इसका एरिया ब्रेथ इनटू हाइट होगा. और जो टॉप फेस है यहाँ पर, सो दैट विल बी नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो सेम यहाँ पर दिस आर द थ्री एडजेसेंट फेसेस, दैट इज फ्रंट, साइड एंड टॉप. यस, ओके, सो सपोज जो फ्रंट है उसको हम x कंसीडर कर रहे हैं और साइड y और टॉप जो है z. सो इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया x, y, z. तो फ्रंट का एरिया क्या है, लेंथ इनटू हाइट. यस और नो? एंड दैट इज x हमने कंसीडर किया. और जो साइड फेस है, सो दैट इज y, उसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ इनटू हाइट. यस, इट विल बी ब्रेथ इनटू हाइट. एंड जो टॉप फेस है, सो इट विल बी नथिंग बट इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. अंडरस्टूड? सो दिस आर थ्री एडजेसेंट फेसेस. सो जैसे जो टॉप होगा वही सेम बॉटम का भी एरिया होगा, जो साइड इधर राइट साइड का वैसे सेम लेफ्ट साइड का भी होगा, और जो फ्रंट है वो बैक साइड का भी जो फेस होगा सेम होगा. बट हमको थ्री एडजेसेंट फेसेस का एरिया मल्टीप्लाई करना है. सो ये तीनों एरिया जो है, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज l इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर, b इंटू बी, बी स्क्वायर, h इंटू एच, एच स्क्वायर. सो x, y एंड z, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, सो वी आर गेटिंग दैट एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर. यस, अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है l इंटू बी इंटू एच. बट वी वांट इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, बिकॉज यहाँ l, b और h के टर्म्स में तो हमें कुछ दिया ही नहीं है, वो तो हमने कंसीडर किया लेंथ, ब्रेथ और हाइट. ओके, तो यहाँ हमारे पास x, y और z है, एंड दिस आर नथिंग बट द एरियाज ऑफ दिस
फेसेस, 3 फेसेस, एडजेसेंट फेसेस। ओके, सो x इंटू वाई इंटू जेड कर रहे हैं तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आर। तो अगर मैं इनका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जाएगा रूट एक्स वाई जेड will be equals to root L square B square H square. So what is root of L square B square H square will be L B H. So L B H आएगा, तो root of x into y into z will be equals to L into B into H. And volume क्या होता है? L into B into H. इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा इसका 1 मिनट, ओके, सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? दैट विल बी नथिंग बट L into B into H, and that is nothing but root of x, y, and z. Yes, it will be root of x, y, z. So volume of this cuboid in terms of x, y, and z will be what? Root x, y, z. So hope you have understood. Okay, so the next question here is 12 solid sphere of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. The diameter of each sphere is okay. So अब देखो, जब भी आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो वहां पर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, दैट विल रिमेन द सेम। यस, अब यहाँ पर हमने स्फीयर बनाया यूजिंग बाय मेल्टिंग दैट सिलेंडर। तो कितने स्फीयर्स हमने बनाए? 12 स्फीयर्स, और सबका साइज जो है वो सेम है, तो सबका रेडियस सेम होगा, तो रेडियस हम कंसीडर करते हैं लेट इट बी कैपिटल आर। यहाँ पर हम कैपिटल आर कंसीडर करते हैं। यस, तो हमने 12 स्फीयर्स बनाए, तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स, सो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की अगर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन दैट 12 स्फीयर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन पर्टिकुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस, सो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स क्या होगा? 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर हम कंसीडर करते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो स्मॉल आर कंसीडर, तो स्क्वायर एच। यस, सो 3 into 1 3 into 4, तो 4 into 4 दैट इज 16 पाई आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब तो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज आर फाइंड आउट करना है, एंड पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? डायमीटर 2 दिया है तो रेडियस विल बी 1, सो 1 स्क्वायर, एच हमें दिया है 16, सो यहाँ पर पाई पाई विल गेट कैंसिल आउट, एंड तो आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 16 बाई, ये 16 यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 16 by 16, so r cube is equals to 1. So taking cube root on both the sides, so r is equals to 1. So therefore the radius of each sphere will be nothing but equals to radius will be 1. तो diameter कितना हो जाएगा? हमें diameter पूछा है, so diameter will be nothing but 2. So option C is the correct. Yes, so हर एक जो sphere होगा उसका diameter कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको क्या करना है, जब भी लाइक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया, सिलेंडर मेल्ट करके कोन बनाया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। बट हम जब वॉल्यूम की बात करते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग दैट पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। सो एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू। ओके, सो जो इवेंट के चांसेस होने का बहुत कम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होगी, तो ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें जो सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 0.000001 50 एंड देन 1 एंड 0.1 एंड माइनस 0.5, तो माइनस में तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, एंड 0.001 तो 30, तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? इट इज 0.000001। अंडरस्टूड। सो द लोएस्ट जो वैल्यू होगा इसमें दैट विल बी नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। यस, सो जो इवेंट होने वाला ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एंड वी नो दैट दूसरी प्रोबेबिलिटी जो होती है दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। यस, अब जैसे यहाँ पर बोला है कि इट्स वेरी अनलाइकली टू हैपन, सो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, तो जो गिवन ऑप्शंस होंगे उसमें से जो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। So hope you have understood. Now we'll move on to the next question. Okay, so the next question here is, if the probability of an event is P, then the probability of its complementary event will be. So ये question का ये मतलब है कि जैसे एक event है उसके होने की probability suppose 60%, so उसके नहीं होने की probability क्या होगी? उसके complementary जो event होगा वो क्या होगा? मतलब नहीं होने की probability क्या होगी? That will be 40%, because कोई भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करेंगे, सो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो अगर होने की प्रोबेबिलिटी 60% है तो नहीं होने की क्या होगी? 100 - 60, दैट इज 40%।
अंडरस्टूड। तो इन द सिमिलर वे, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट ई, दैट इज ये हो गया पर्टिकुलर इवेंट ई और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्या होता है 1। तो अब जैसे कि बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज पी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी क्या होगा, तो इट विल बी नथिंग बट 1 माइनस पी। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। अंडरस्टूड। सो hope you have understood. If still you have any doubt in any of the question, you can write in the comment section that particular question में आपको doubt है, तो मैं उसको और डिटेल